Hello students of class ninth, welcome back to the next part of the chapter The Little Girl. It is a video 2 for the chapter 3 The Little Girl. So in the last video we studied that the little girl was making a birthday present for her father. Actually she was so terrified of her father. She was so frightened of her and her father appeared to her as a giant. उसको उसके father कैसे लगते थे, एक बड़ा सा giant, एक दैत्य की तरह. And she was making. Now one day what happened, she was ill and her grandmother advised her that your father's birthday soon approaching, so better you make a birthday present for him. So she made a pin cushion with a yellow silk cloth which was given to him by her grandmother only. And when she stitched the three sides, she was searching for something to fill in, okay, to make a pin cushion to fill in something. So she reached her father's room and thereby she got some papers, soft papers lying on the mother's table. So she took those papers, tore them and fill in the pin cushion. Now what happened that night? Again let's read further. Page number 34. Move on to the fourth para. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. A speech which was written on a very soft piece of paper, that speech had been lost. And we all know that what the speech was stuffed in the pincushion. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. So, what she questioned to Kezia, I think you must not have seen. She was not at all believing that Kezia had taken the papers. Oh, yes, she said, I tore them up for my surprise. Kezia was a very good girl. She was very honest one. She admitted her mistake and she said, yes, I had taken those papers and I tore them for my pen cushion. What? Screamed mother. Come straight down into the dining room this instant. तुम अभी के अभी dining room में आ जाओ. You had done a wrong thing. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे खींचकर वहां ले जाया गया डाइनिंग रूम में जहां उसके फादर हाथ पीछे करके चक्कर काट रहे थे आगे और पीछे. Well, he said sharply. अच्छा, मदर एक्सप्लेन. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. और वो उसको घूरने लगे. डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड. अब वो अपने फादर से बहुत डरती थी. शी सेड नो, आई डिडंट डू. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. चाइल्ड इज पुट टू बेड इन दिस इंस्टेंट. अब क्या हुआ? जो उसकी मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर केजिया की, उसके फादर अपनी मदर से कहते हैं मदर यू गो, तुम अभी के अभी ऊपर जाओ और लेकर आओ, नीचे लेकर आओ. किसको? या नीचे फेंको उस बेकार सी चीज को, पेन कुशन को, जो कि चाइल्ड हैज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, जो कि इसने अपने पलंग पे अभी के अभी इस समय रखा हुआ है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट पेज. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत रो रही थी. उसके फादर उसे बहुत डांटा. She was very much scared. तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी. वो अपनी बात को जाहिर भी नहीं कर पा रही थी. She lay in the shadowed room. उसे एक थोड़े से अंधेरे वाले कमरे में बैठा दिया गया और वहां पर वो क्या देख रही थी कि कैसे जो लाइट थी वो एक छोटी सी शेडो बना रही थी फ्लोर पे. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. उसके फादर फिर उसके पास आते और उनके हाथ में क्या था? एक स्केल था, एक रूलर था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. और वो केजिया से कहते हैं तुम्हें इसके लिए मार जरूर पड़ेगी. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड. वो चीखने लगी, नहीं प्लीज प्लीज आप मुझे मत मारिए. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और वो अपने आप को छुपाने लगी बेड के नीचे. ही पुल्ड देम असाइड. और वो अपने जो कपड़ों के नीचे खुद को छुपा रही थी, उसके फादर ने उन कपड़ों को साइड में रख कर उसको उठाया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. उठ के बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथों को बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार सख्त सबक सिखाना ही होगा कि तुम्हें उन चीजों को टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो तुम्हें बिलोंग नहीं करती. But it was for your birthday. She was screaming. She was terrified. So what she was telling? नहीं नहीं, वो तो आपके बर्थडे के लिए ही था. Down came the ruler on her little pink palms. और झटके से वो रूलर, वो स्केल कहाँ पड़ा? केजिया के पिंक पिंक palms पे, उसकी हथेलियों पर. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और घंटों बाद क्या हुआ? वो बहुत घबरा गई. उसकी ग्रैंडमदर ने घंटों बाद उसको ग्रैंडमदर ने उठाया, उसकी अपनी शॉल में रैप किया और जो रोलिंग चेयर होती है, ओके, एंड शी वाज रॉकिंग हर ऑन द चेयर ऑन इन हर लैप.
What did God make fathers for? She sobbed. वो बहुत रो रही थी, घबरा कर वो रो रही थी, और वो क्या कह रही थी कि फादर कि गॉड ने इन फादर लोगों को क्यों बनाया है. Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. ओके, हियर इज ए क्लीन हैंकी, तुम ये साफ सुथरा रुमाल ले लो डार्लिंग, अपनी नाक को साफ करो और शांति से सो जाओ. यू विल फॉरगेट इट, कल जब तुम सुबह उठोगी तो इस घटना के बारे में सब कुछ भूल चुकी होगी. मैंने तुम्हारे फादर से बात करने की कोशिश करी पर वो इस बात में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे. ही इज वेरी अपसेट. ओके, सो बाय टुमारो मॉर्निंग ही विल बी ओके एंड he will be okay and you will also forget what he had done today. Okay, so next time she saw him she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. पर क्या हुआ, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, वो चाइल्ड कभी भी, केजिया कभी भी इस बात को नहीं भूली. और जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो अपने दोनों हाथ पीछे करके, जैसे ही उसने नेक्स्ट टाइम अपने फादर को देखा उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसके गाल कैसे हो गए थे, एकदम लाल. दैट मीन्स शी वाज टोटली स्केयर्ड ऑफ हर फादर. ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.